Good morning, students. How are you all? Hope you are all doing well. In the last class, we have completed heat chapter up to the topic boiling, right? We have completed the heat chapter up to the topic boiling. So, children, what we learned in the heat chapter about evaporation. About evaporation. What is evaporation? What is evaporation, children? Change of liquid to gases. Okay, changing of liquid state to gaseous state is known as evaporation. Got it? What is evaporation? Change of liquid into gaseous state is known as evaporation. We have studied about evaporation in detail in the classes only. Again, I am revising you all. What is condensation? Condensation is changes of gaseous state to liquid state. We have done activities. We learned activities regarding evaporation, condensation, humidity, dew, fog and boiling. Yes, right? Next, what is humidity? Humidity is amount of water vapor present in the air. What is humidity? Amount of water vapor present in the air. All of you revise it once again. Next, what is dew? Water droplets condensed on air is dew. इसका मतलब क्या है? जो एयर में जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो सब क्या है? ड्यू बोलते. ठीक है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड इन द एयर इज ड्यू. What is fog? Generally, fog we see in the winters. We see in the winters that air is full of thick white color smoke like appearance. What is that? It is fog. Okay, in winter seasons we observe this fog. What is fog? Thick mist is called fog. What is fog, children? Thick mist. We studied about this. Once again I am repeating you. Next, what is boiling? Liquid to gaseous state. Change of liquid to gaseous state at constant temperature and pressure. Boiling is same when compared to evaporation. Evaporation process and boiling process is same. But what is difference in this? Boiling occurs only at a constant temperature and pressure. Okay, boiling occurs at constant temperature and pressure. For example, when we heat water, it continuously we supply the heat, the water starts boiling. What is the boiling point of water? The boiling point of water is 100 degrees Celsius. Okay, it does not exceed. इससे आगे उसकी टेम्परेचर नहीं बढ़ता. So what is the boiling point of water? The boiling point of water is 100 degrees Celsius when the water starts boiling at 100 degrees Celsius. Next we'll see about melting. Okay, यहाँ तक डिटेल में हुआ. अब आज की क्लास में अपन मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज मेल्टिंग, चिल्ड्रन? मेल्टिंग इज चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड स्टेट. ओके, चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज melting. Okay, change of a solid into liquid state. For this we have to do one activity. While reading, children, all of you should observe your textbooks. What is melting? For this we have to do activity. Take small ice cubes in a beaker. Insert the thermometer into the ice cubes in the beaker. क्या करना अपन? एक बीकर में आइस क्यूब्स डालना. आइस क्यूब्स मालूम है ना? अपने घर में अवेलेबल रहते. क्या करना? ये आइस क्यूब्स को बीकर में डालना. टेक स्मॉल आइस क्यूब्स इन अ बीकर. इंसर्ट द थर्मोमीटर इनटू द आइस क्यूब्स इन द बीकर. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, कीपिंग इट ऑन ए बर्नर. क्या करना? आइस क्यूब्स को बीकर में रखकर उसको कंटिन्यूसली हीट करो. क्या करना? हीट करना. और आइस क्यूब्स में अपन क्या प्लेस कर रहे हैं? थर्मोमीटर. क्या प्लेस कर रहे हैं अपन? Thermometer. Now start heating the beaker, keeping it on a burner. Okay, next observe the changes in the thermometer, reading every 1 minute till the ice completely melts and gets converted into water. ठीक है, ये वाटर को जब अपन हीट कर रहे, जब ये आइस क्यूब्स को अपन हीट कर रहे कंटिन्यूसली, तब क्या करना? एवरी 1 मिनट को इसका टेम्परेचर चेक करना. ओके, गॉट इट? एवरी 1 मिनट को इसका टेम्परेचर चेक करो. एवरी 1 मिनट टिल द आइस कम्प्लीटली मेल्ट्स. कब तक चेक करना है टेम्परेचर? जब तक
आइस क्यूब्स पूरा मेल्ट नहीं हो जाते, मेल्ट होके पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है चिल्ड्रन, क्या करना, आइस को कब तक हीट करना, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर एज टाइम पासिस बाय। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस, क्या होता, इसका टेम्परेचर क्या होता। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर एज टाइम पासिस बाय। जब अपन हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब ये आइस क्यूब्स थे तो इसका टेम्परेचर क्या था, लो था, टेम्परेचर लो था। जब अपन हीट करें तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर जब आइस क्यूब्स थे तो लो था, जब अपन हीट करें तो इंक्रीज हो गया। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका आंसर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। Does the temperature of the ice change during the process of melting? Does the temperature change, children? Yes, the temperature changes. The temperature changes. You will observe that the temperature of ice at the beginning is equal to or below 0 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग ये आइस क्यूब्स का टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लास में भी मैं एक बार बोली थी आप लोगों को कि आइस का क्या रहता है, लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो किस फॉर्म में रहता है जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, कौन से फॉर्म में रहता वाटर, आइस फॉर्म में। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ आइस इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट गोज ऑन चेंजिंग टिल इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, when ice starts melting you will notice no change in temperature though you are supplying heat continuously. Why does this happen? ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कई को। why does this happen? the heat energy supplied to the ice increases the internal energy of the molecules of the ice. क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हीट एनर्जी अपन कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं वो आइस इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आइस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हीट एनर्जी, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती बस। ठीक है, जब अपन कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट इंटरनल एनर्जी आइस के मॉलिक्यूल्स की पूरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही। समझ में आया आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा, आइस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही। कब, जब अपन कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे। दिस इंक्रीजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वीकन्स द बॉन्ड्स एज वेल एज ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द आइस। क्या हो रहा, जो अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो अपन कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है आइस मॉलिक्यूल्स की। आइस के अंदर के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा वहाँ पे क्या हो रहा, इनके बॉन्ड्स वीक हो जा रहे, अंदर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स वीक होने से दे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक होना स्टार्ट होके वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म को आता। ठीक है, आइस क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म को आता है। दैट इज़ वाई द आइस इन सॉलिड फेज बिकम्स वाटर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। क्या बोलते हैं अपन, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस। What is the melting point of the water, 0 degree Celsius. And what is the boiling point of the water, 100 degrees Celsius. And what is the melting point of the water, 0 degrees Celsius. Okay, got it children? So what is this process of converting solid into a liquid is called melting. समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया ना, कुछ भी डाउट्स रहो मेरे को फिर पूछो आप लोग। The temperature of the ice does not change during melting because the heat energy given to the ice is totally utilized in breaking the bonds between the water molecules. क्या होता है, the temperature of the ice does not change. काहे को चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर, क्यों, बिकॉज द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी अपन एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे किसको, आइस को, क्या होता है, कौन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अंदर जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे, किसके बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स। कहाँ पे है ये मॉलिक्यूल्स, आइस में है। तो ये आइस मॉलिक्यूल्स को जो अपन हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी अंदर
आइस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही। सो इसीलिए बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द आइस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग बिकॉज द हीट एनर्जी गिवन टू द आइस इज टोटली यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड। समझ में आया ना आप लोगों को? नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच सॉलिड फेज चेंजेस टू लिक्विड phase at a constant temperature is called melting. This constant temperature is called melting point. समझ में आया ना? ये बोली मैं अभी क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड फेज, एक कौन सी भी सॉलिड अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही, कौन सी भी सॉलिड, फॉर एग्जांपल वाटर, एग्जांपल आइस व्हेन चेंजेस इनटू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जो पॉइंट पे आके उन्हें मेल्ट हो रहा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू।